So from today onwards, we have to start with carboanion, right? Carbocation have positive charge on it, and carboanion have negative charge on it. Okay? with 6 more. हाँ जी. No 6 electrons, beta. It do not have. It have 8 electrons in the outermost shell. Okay? Not 6, but it have 8 electrons in the outermost shell. Okay, so let's start. So it is defined as negatively charged ion in which the negative charge is carried by the carbon, okay, and has 8 electron in its valence shell. Now, what is important? How 8 electrons? Okay, how 8 electrons? See, I have a carbon having 4 electron in the valence shell. Clear? Now, it react with the 3 groups. Sana? 3 groups are attached. Okay, and this electron is neutral, so we call it a free radicals. Okay, because 2 electrons are here, 2 are here, 2 are here. Now what will happen? It gain one more electron. तो यहां तक देखा जाए इसके पास अपने ही इलेक्ट्रॉन है जितने थे, कोई बाहर से अंदर ऐड नहीं हुआ है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है. कार्बोकैटायन में ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो गया था, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव चार्ज आ गया था. बट इन केस ऑफ कार्बोएनायन यहां पे कौन सा ग्रुप आएगा? R, right? So यहां पे आ गया हमारा R ग्रुप, और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया बेटा? गेन कर लिया है. उस गेन के चक्कर में क्या आ गया इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज. ओके, उस गेन के चक्कर में आ गया नेगेटिव चार्ज. एंड इफ वी कैलकुलेट the number of electrons, in the outermost shell of carbanion, so they are total 8 electrons. Okay, so they are total 8 electrons. Clear? Now let's talk about the structure and stability. Okay, sorry, structure of carboanion, right? So I am going to rub this. Hope you have noted down. Can I rub this? Yes, sir. Okay. So I'm writing structure of carboanion, right? So I have a carbon having electronic configuration atomic number 6, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6,
then in the ground state and outermost orbitals have been drawn like we have discussed in our last class. Okay, and this is the carbon in ground state. I said GS for ground state. I say ES for excited state. So what will happen in excited state? One of the electron from 2s orbital will jump to 2pz orbital. Okay, so here and here. Now it gain one electron. It gain one electron. Since it gain one electron, so I said it become a carbanion. Okay, so सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी. ओके, सो आई नो दैट मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था सिर्फ एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेक पार्ट नहीं लेते हैं. सो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड टेक पार्ट लेते हैं. ठीक है, तो विच हाइब्रिडाइजेशन इट इज? sp3, क्योंकि दिस इज 2s एंड दिस इज 2p. ओके, तो s ऑर्बिटल भी कंज्यूम हो गया, p ऑर्बिटल भी इसके अंदर हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, हाइब्रिडाइज्ड होने गया है. Okay, it is like this. Clear? Now if we talk about the 4, what is the best possible geometry when you have a AB4 system? So therefore na, so it is the kind of AB4 system. Okay, what is the best possible geometry? Answer comes out to be टेट्राहेड्रल. ओके, तो अगर मेरे पास कार्बन है एंड द बेस्ट पॉसिबल ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, बट इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वन ऑफ द पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर. ओके, वन ऑफ द पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर, क्योंकि यहां पे लोन पेयर आ जाएगा. सो लोन पेयर क्या करेगा बेटा? लोन पेयर रिपेल करेगा. इट स्टार्ट रिपेलिंग दिस ग्रुप, इट स्टार्ट रिपेलिंग दिस ग्रुप एज वेल. सो व्हाट विल हैपन? दीज आर विल बी लिटिल कॉन्ट्रैक्टेड. दीज आर विल बी लिटिल कॉन्ट्रैक्टेड इनवर्ड्स. तो जिसके कारण एंगल जो होगा वो 109 नहीं होगा. ओके, जो नेचुरल एंगल होता है 109, so angle will not be 109, it will be around 107. okay, तो अब इसको मैं टेट्राहेड्रल तो नहीं बोल सकता. इट लुक लाइक टेट्राहेड्रल इफ इट इज अ रेगुलर ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री कौन सी होगी बेटा? ज्योमेट्री हमेशा रेगुलर होती है. रेगुलर का मतलब हो गया जिधर से मर्जी देखो एक जैसा ही आपको नजर आएगा. ऐसा नहीं है कि यहां इस साइड से देख रहे हो तो कुछ और नजर आ रहा है, इस साइड से देखोगे तो कुछ और नजर आएगा. नहीं, आपको एक ही जैसा सिस्टम नजर आएगा. क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब है कि तो ऐसे से मॉलिक्यूल जिनके अंदर लोन पेयर आ जाते हैं और वो ज्योमेट्री को डिस्ट्रॉट कर देते हैं. डिस्ट्रॉट मतलब रेगुलर ट्रेंड से थोड़ा सा डिवेट कर देते हैं, तो उसके केस में हम पढ़ते हैं शेप. ओके, तो शेप क्या है इसकी? शेप कौन सी होगी इसकी? पिरामिडल. ऑलराइट, तो कौन सी शेप होगी है इसकी? शेप होगी है पिरामिडल शेप होगी है इसकी. ओके, एंड द सेंट्रल कार्बन एटम इज sp3 hybridized, and the central atom is sp3 hybridized. Clear? Yes sir. Could doubt? No sir. Okay, good. हाँ जी, एक मिनट रुक जाओ. All right. क्या sp3 आया? रब कर दो. So now I'm going to rub that. Next is classification. Next is classification. So
classification of carboanion. So you have to look for the classification कि कितने टाइप के कार्बोनाइन होते हैं. So let me write. So this is the hydrogens, and then I have a negative charge. Okay. This is methyl carboanion. Methyl carboanion, right? तो जब एक कार्बन अटैच हो जाता है तो मैंने आपको बताया था इट विल बिकम प्राइमरी कार्बोएनायन. अब जब जिस कार्बन के ऊपर चार्ज है वो फर्दर दो कार्बन से अटैच्ड है, वो फर्दर दो कार्बन से अटैच्ड है, देन इट विल बिकम सेकेंडरी कार्बोएनायन. ओके, 1 2 3. नाउ विल टॉक अबाउट द फोर्थ वन. Right? The fourth one is CH3 carbon, CH3, CH3 negative, and it is the tertiary carboanion. Okay? Tertiary carboanion. Next. अब ये रेगुलर ट्रेंड तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मिथाइल, राइट? इसके अलावा हमने पढ़ा था अलाइलिक. अलाइलिक. सो दिस विल बिकम CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज. दिस इज CH, दिस इज CH2. इसके अलावा हमने दो और पढ़े थे, एक CH2 नेगेटिव, दैट इज नोन एज बेंजाइलिक. ओके. नेक्स्ट इज CH, दो फिनाइल रिंग्स लगे हुए हैं, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोएनायन. मिथाइल कार्बोएनायन. हाँ जी. एंड द लास्ट वन, वो मैंने लास्ट टाइम भी ड्रॉ नीचे ही किया था, राइट? कार्बन एंड दिस इज ट्राइफिनाइल मिथाइल. ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोएनायन, डाई मिथाइल, सॉरी डाइफिनाइल, सॉरी रॉन्ग हो गया. आई विल राइट इट अगेन. डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोएनायन, this is benzyl carboanion, this is allyl carboanion. Okay beta? So let's give them a particular name. Let's give them a particular name. Say this is A, this is B, this is C, this is D, E, F, G, H. Okay, and H is more stable than G, G is more stable than F, and F is more stable than E. What is the trend? If I'm talking due to resonance effect, due to resonance effect. ओके, तो रेजोनेंस हो जाता है. रेजोनेंस का मतलब होता है कि आपका जो चार्ज है वो एक जगह पे नहीं रहता है. अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर रेजोनेंस कैसे बता रही है, राइट? तो लेट मी एक्सप्लेन यू बाय गिविंग वेरी सिंपल एग्जांपल, बाय टेकिंग, लेट्स चूज दिस. हम इसी को ले लेते हैं. यहां पे देखा जाए, आप मेरे को बताओ नेगेटिव चार्ज कितने कार्बन एटम के ऊपर है? हाँ जी, एक कार्बन पे नजर आ रहा है आपको? हाँ. है ना? So let me take this example again. CH2 double bond CH, single bond CH2 negative. Okay, CH2 negative. Now what will happen? देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहां फॉल करेगा. ओके बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर को ओपन हो जाएंगे.
Clear? So what will happen? What will happen if I am drawing this structure again? Okay, if I will draw this structure again, this is CH2 negative, single bond CH, and this is double bond CH2. हाँ जी, तो नेगेटिव या तो ए फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या बी करती है। क्लियर? हाँ जी, तो इसी के अंदर ये ना तो ए एग्जिस्ट करती है ना बी एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसी को ऐसे भी लिखता हूं, ठीक है, दिस नेगेटिव विल फॉल हियर, दिस विल ओपन अप दिस साइड, so this is converted into A, then this is converted into A, again this will fall and this goes back and is converted into B. So AB की जो confirmation है वो चलती रहती है, ठीक है। So what will happen now? You have seen CH2 CH CH2, yes or no? Yes sir. और ये जो डबल बॉन्ड है, ये देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ये रिवॉल्व हो रहा है इन 3 कार्बन एटम्स के ऊपर। यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक एटम के ऊपर नहीं है, 3 एटमों के ऊपर है, ठीक है, राइट। जब एक बोझ को उठाने के लिए पहले तो एक बंदा हो, राइट, अब उस बोझ को उठाने के लिए सेम 3 बंदे आ गए हैं, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको? गुड। नाउ मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी पूरे को रब नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बेंजीन के साथ भी दिखाना चाहता हूं एक बार, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे, राइट। होता क्या है, नाउ वी हैव अ सिस्टम लाइक आई हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस, so this is CH2 negative, like here, here and here. When this negative falls here, okay, this will open up, okay. So what is happening? This is double bond CH2, okay, नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ गया। नाउ इट विल फॉल्स हियर एंड लाइक दिस, राइट। सो ये डबल हो गया, यहां पे ये डबल हो गया, एंड दिस इज CH2। अगेन अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये यहां आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। सो ये यहां आ गया, ओके। तो दिस कम्स हियर एंड दिस इज CH2 एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, ये यहां आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, राइट, एंड दिस विल बी आवर प्रीवियस स्ट्रक्चर, ओके। पर अगर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरी रिंग के ऊपर घूम गया, हाँ जी। तो एक नेगेटिव चार्ज देखा जाए, एक नेगेटिव चार्ज 6 कार्बन एटम्स ने डिवाइड कर लिया। इसके केस में 3 ने डिवाइड करा था, हाँ जी, तो स्टेबल हो गया था। इसके केस में 6 ने कर लिया है, इन 6 ने, रिंग वालों ने। इसके केस में 12 ने कर लिया है, इस 3 फिनाइल के केस में 18 ने कर लिया है, हाँ जी बेटा, यस और नो। तो जितने ज्यादा लोग एक नेगेटिव चार्ज को शेयर करेंगे उतना ज्यादा नेगेटिव क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए H सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि H में एक नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 18 कार्बन एटम्स हैं। G के केस में 12 कार्बन एटम्स हैं, F के केस में 6 कार्बन एटम्स हैं, E के केस में 3 कार्बन एटम्स हैं। यस और नो? इज इट क्लियर ना? तो जितने ज्यादा इसको स्टेबलाइज करेंगे उतना ज्यादा ये चार्ज स्टेबल हो जाएगा। नाउ मैं थोड़ा वापस आता हूं
क्योंकि यहां तक तो मेरे पास अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, राइट, क्योंकि ये सारा पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है कि मैंने ये जो रेजोनेंस वाला पार्ट था। इसके बाद कार्बो मैं वापस आता हूं, हाँ जी, इस पे देखो बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, नेगेटिव का मतलब है पहले ही वो रिच है, ठीक है। जैसे कह लो पहले इस इंसान का पेट भरा हुआ है, इस ए वाले का पेट भरा हुआ है, भरे हुए पेट में ये कहता है तू और खाना ले ले मुझसे, तो आपका कार्बन स्टेबलाइज होगा अनस्टेबलाइज होगा? अनस्टेबलाइज। अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसको भूख तो है ही नहीं है। जब उसको भूख नहीं है तो वो खाना क्यों खाएगा भाई, वही बात है ना। और यहां तो एक बोल रहा था, यहां कहते हैं दो दो लो, तुम हम दोनों से इलेक्ट्रॉन लो, ये क्या हो जाएगा, और ज्यादा अनस्टेबलाइज्ड। और 3 वाला क्या हो जाएगा, और ज्यादा अनस्टेबलाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन बी, देन सी, देन डी। ओके, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट of alkyl group make it unstable. Okay, clear? हाँ जी, हाँ। okay. Now what will happen? See, सबसे ज्यादा H, G, मैंने पहले कल ही बता दिया आपको, जहां पे रेजोनेंस हो और इंडक्टिव हो तो रेजोनेंस हमेशा जीतेगी। अगर हम बात करें रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट में से, तो रेजोनेंस इफेक्ट आपका हमेशा जीतेगा, इसलिए मैंने एच जी एफ ई, क्योंकि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर हम बात करें ए बी सी डी के केस में, यहां पे एक ही कार्बन एटम पे रहता है, पर साथ वाले कार्बन एटम उसको और दे देते हैं अनस्टेबलाइज करने के लिए, right? So that is the overall stability of the carboanions. Is it clear, beta? Now we will do reactions of, sorry, generation of carboanion, right? Generation of कार्बोएनाइन, राइट। तो कार्बोएनाइन जो है उसको जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा, राइट। सो सबसे पहला तरीका है, ठीक है, वो है बेस। ओके, एक्शन ऑफ बेस ऑन द अल्फा पोजीशन ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, राइट। So why? See, I have a carbonyl group. I have a carbonyl group. चलो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ही ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस साइड की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने एक साइड ब्लॉक कर दी है बेटा, ठीक है। और दूसरी साइड पे अगर मैं देखूं तो यहाँ मैंने ले लिया है CH2 और यहाँ मैंने लगा दिया है हाइड्रोजन, यहाँ मैंने लगा दिया है हाइड्रोजन। Now what will happen? Please try to understand this. Okay. This group, carbonyl group, is the electron withdrawing group. Okay, so it withdraw the electron density. तो ये डेफिशिएंट होगा, ये किससे लेगा, ये 3 हाइड्रोजन जो हैं उनसे लेगा, all 3 हाइड्रोजन्स। and see what will happen, this hydrogen is highly electron deficient. ओके, क्योंकि सारे तो इलेक्ट्रॉन खींच के ले गए हैं, तो इसके ये क्या हो गया, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, और इन सिंपल वर्ड्स we can say that
this hydrogen is acidic. So this hydrogen is acidic. So this is, if I want to say okay, this is my zero position, right? This is zero and this is alpha. Okay, तो हम जर्नली लिखते हैं, नोट, हम जर्नल ये चीज लिखते हैं, अल्फा प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं बेटा, अल्फा प्रोटॉन्स आर एसिडिक. ओके, तो ये बहुत अच्छा सा वर्ड हम लोग बार बार यूज करते हैं कि अल्फा प्रोटॉन्स आर एसिडिक. व्हाट आर अल्फा प्रोटॉन्स? अल्फा पोजीशन होती है कार्बोनिल से नेक्स्ट पोजीशन, एंड कार्बोनिल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है अपनी तरफ को खींच लेता है. इसलिए जो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं. डेफिशिएंट होने का मतलब है कि अगर मैं कोई भी यहां पे एक OH नेगेटिव लेके आता हूं, OH नेगेटिव लेके आता हूं, तो ये नेगेटिव इस पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा. क्यों? क्योंकि ये रिच है. नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? रिच. ओके, और हाइड्रोजन मेरा क्या है? पुअर. ओके, तो एक अमीर एक गरीब के ऊपर अटैक करेगा, जैसा कि मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया था कि इट्स ऑल अबाउट रिच एंड पुअर. हमेशा अमीर ही गरीबों पे अटैक करते आए हैं. सो दिस रिच will always attack onto the poor hydrogen. So, and what will happen? What this will do then? Okay, what this will do? This leaves its electron here. ये इन इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पे छोड़ देगा और निकल जाएगा एज वाटर. ये वाटर बनके निकल जाएगा और this is CH2 and here is the negative charge and this is C double bond OH. Okay, हाँ जी बेटा. Further what will happen? Further this negative is resonance stabilized. Okay, so we may also written that CH2 double bond CHO negative. Okay, so this form is called enolate form. Okay, sorry, I've done a spelling mistake. Enolate form. Okay, तो इन भी है और एट भी है. ओके, सो इनोलेट फॉर्म बन जाती है. तो यहां पे आपका जो नेगेटिव है, ठीक है, तो वो स्टेबलाइज भी हो जाता है, क्योंकि कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना ऑक्सीजन है. कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज को अगर संभालने की बात करी जाए तो ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है नेगेटिव चार्ज को एज कंपेयर टू द कार्बन एटम. ओके, एनी डाउट बेटा? No, sir. Okay, very good. So this is the simple, things, है ना? So by which we can generate the different carboanions. Okay? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? Okay. No, sir. Good. So this is the most widely used method in chemistry for the generation of carboanions. Okay. So we have done with the carbon ion.